आम इंतखाबात 2019 को लेकर मुल्कगीर सियासत परवान चढ़ने लगी है और खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर तारीखों का ऐलान कर सकता है। कुछ ऐसा ही दावा कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी ने भी किया है। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी पर पार्लियामेंट को गुमराह करने का भी इल्जाम लगा दिया। रियासत में अक्सरियत की कमी का इल्जाम झेल रहे कुमारस्वामी ने कहा है कि मौजूदा हालात से निपटने के लिए सभी अपोजिशन जमातों को वो साथ आने की अपील करते हैं। ಮಾರ್ಚ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಸಭೆ ಅವರದು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿತಿನ್ 1 or 2 days, I think election commission will going to announce the date of future parliament election. They must expose the real truth of this present prime minister in this country. How he bow his head on the steps of the parliament house, still I am remembering. I have done in 55 months what Congress not done in 47 years. Yesterday's statement on the floor of the house is systematically demolishing this country's democracy system. He is misleading the parliament house. Today I request all our opposition party friends, raise the issue, the dual role of Honorable Prime Minister and his team. One side is projecting himself savior of this country and totally demolished corruption system. Other side, what his friends are doing, how he is encouraging his colleagues. ऐवान में अक्सरियत की कमी का इल्जाम झेल रहे सीएम कुमारस्वामी ने आज बड़ा धमाका किया है। इत्तेहादी जमात के एमएलए से बातचीत का एक ऑडियो जारी किया है और सीएम ने लीडर अपोजिशन पर जमकर हमला बोला है। डिप्टी सीएम समेत दिलगर लीडरान की मौजूदगी में बीजेपी के रियासती सदर का ऑडियो जारी करते हुए उन पर खरीदो फरोख्त का भी इल्जाम लगाया है। येदियुरप्पा और जेडीएस एमएलए नगनागौड़ा कांडकूर के बेटे शरणा की बातचीत का एक ऑडियो क्लिप जारी किया गया है, जिसमें येदियुरप्पा उनके वालिद को 25 लाख और वजारत का ओहदा देने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी इंसाफ की बात करते हैं, क्या वे अपने लीडर पर कार्रवाई करेंगे? हालांकि बीएस येदियुरप्पा ने इस इल्जाम को खारिज करते हुए बताया है कि यह सब बेबुनियाद है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री He is encouraging without the knowledge of the Honorable Prime Minister. Is it possible for these leaders to go like this? Taking his permission only, Amit Shah and Narendra Modi, they are doing all these mischievous works. One side they are preaching how to we have to maintain our political system. Another side, how you want to demolish this system. Both the things you have exposed from your friends only, not opposition leaders. Your friends only exposing your real picture of your face today. If you have any morality in your political career, I demand this Honorable Prime Minister take appropriate action. अपोजिशन पार्टी लीडर
Even MLA-ship, I am going to resign. You let him prove that. Is that your audio, sir? Pardon? There is no truth in it. Trying to poach MLA, sir. My dear friend, that's much I can say. According to my information, 10 to 11 MLAs from Congress, JDS, even today they are not going to attend. That's all my information. So they will come to you, sir? They are not attending the assembly, my dear friend. That much I can say. चलिए बढ़ते आगे। कर्नाटक असेंबली में 2019-20 का बजट सीएम कुमारस्वामी ने पेश किया। बीजेपी अरकान की गैर मौजूदगी में सीएम ने किसानों पर जमकर फोकस किया। इस दौरान उनके कर्ज माफी के लिए 5,450 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस मौके पर कुमारस्वामी ने कहा कि इससे तकरीबन 12 लाख किसानों को फायदा हो रहा है। इस दौरान उन्होंने मरकज के आयुष्मान भारत स्कीम को आरोग्य कर्नाटक के साथ जोड़ने की बात कही है। इस दौरान बीजेपी लीडरान ऐवान से बाहर मुजाहरा करते हुए नजर आए। उनका इल्जाम है कि जब हुकूमत के पास अक्सरियत ही नहीं है तो बजट पेश करना गैर आईनी है। By the chief minister or the finance minister, which is there for last 60 years, these people have broken it. I don't know for what reason they have stopped giving information to the people immediately. Number one. Number two, we had our leader of opposition had written a letter regarding this. They are not given any respect to it. That's why we are protesting. Second thing is, it is becoming unbecoming of a chief minister to stand in front of the people and bring out some conversation somewhere done during the budget time without any proof. Nothing is clear in that, and it is all been concocted. So this has become unethical to stick to his chair of chief minister. So we are protesting that. बेंगलोर के सीनियर कॉर्पोरेटर अब्दुल वाजिद को रूलिंग पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है और इस मौके पर अक़लियती वजीर जमीर अहमद खान ने उनको मुबारकबाद पेश की। इस दौरान आवामी खिदमत पर जोर देते हुए लीडरान सबको साथ लेकर चलने की यकीन दहानी कराई। साहब का और बेंगलुरु के पूरे एमएलएस और कॉर्पोरेटर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से। एक बहुत बड़ी जवाबदारी दी गई है। इससे पहले भी रिजवान नवाब साहब हैं, गुजर चुका है, 3.5 साल गुजर चुके हैं। कॉर्पोरेशन में बहुत अच्छा काम हमारी ये जो सरकार है, जो कॉर्पोरेशन है, जो मिली जेडीएस और कांग्रेस की जो कॉर्पोरेशन चल रही है, 3.5 साल में बहुत अच्छा काम हमने बेंगलुरु में किए हैं। जो अच्छे काम जो किए हैं, जो आडलता हमने दिया है, उसको आगे लेके चलेंगे और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और लोगों को जो चाहिए उसको दिलाने की कोशिश करेंगे। आज बीबीएमपी से पार्टी लीडर, इससे पहले भी हमारे रिजवान भाई थे, उसके पहले मैं दूसरे था, इस बार मुसलमान को देना करके डिसाइड करके हमारी पार्टी से अब्दुल वाजिद सीनियर लीडर होते हैं, उनको बीबीएमपी का पार्टी लीडर बनाया गया। आज उनका ऑफिस का इनाग्रेशन था, वो इनाग्रेशन के लिए आया हुआ था। आज तेलंगाना वक्फ बोर्ड की बजट को लेकर अहम मीटिंग हुई और जिसमें वक्फ इमलाक के देखभाल के लिए सख्ती बरतने की बात कही गई है। इस दौरान इमलाक के खुर्दबुर्द होने का भी मामला उठा है। हालांकि चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने पूरे मामले पर कार्रवाई की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि उनका मकसद गरीब मुसलमानों को ज्यादा सहूलियात फराहम कराना है। सीईओ परमानेंट होना बोल के भी हम लोग गवर्नमेंट को इससे पहले लिख दिए और अकाउंट ऑफिसर सीए को एक अपॉइंट करेंगे हम लोग। सीए परमानेंट बजट के लिए पेमेंट के लिए जो है ना, एक परमानेंट सीए को जो है सैलरी देके सीए करे हुए 3-4 साल का एक्सपीरियंस रहना उनको भी हम अपॉइंट करके वक्फ बोर्ड में जो है ना, जो हमारा फाइनेंशियल पूरा बजट देखना करना, पेमेंट कैसा आ रहा कैसा जा रहा, पूरे टैक्सेस देखना, हर चीज देखना, एम्प्लॉइज बराबर सैलरी ले रहे, कोई ज्यादा ले रहा क्या ले रहा, उसके ऊपर भी हम सीए को भी आज सीए को एक अपॉइंट करेंगे बोल के वो भी एक डिसीजन लिए हम लोग। और अब जो सुल्तान मोहिउद्दीन जो पुलिस की तौहील में है, वो पुलिस फाइनल क्या करती है, वहां से रिपोर्ट आने के बाद उनको भी टर्मिनेट करेंगे बोल के वो एक बोर्ड में डिस्कशन हो। तो इंशाल्लाह ताला पुलिस की रिपोर्ट पे हम लोग जो भी गलत है, जो एक्शन लेना है, पुलिस को फुल हम ये करे हुए है, जो अगर गलत है जेन्युइन है तो बराबर उसको एक्शन लेना बोल के हम लोग भी डिसीजन लिए। औकाफ की बर्बादी के खिलाफ अपोजिशन नाराजगी का इजहार करते हुए नजर आए। साबिक रुकने पार्लियामेंट अजीज पाशा ने कहा कि बोर्ड के चेयरमैन की सरपरस्ती में वक्फ इमलाक की लूट मची है, लेकिन लोग हमेशा ये तमाशबीन बने रहें। और वहीं लोग इस दौरान बोर्ड पर भी उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि सब पैसे का खेल है, एक लोग के पास कितने इमलाक पड़े हुए हैं, जबकि गरीब मुसलमान परेशानी की जिंदगी गुजार रहा है।
शफाफ तहकीकात होना और तमाम जो छुपे हुए अनासिर है जिनकी सरपरस्ती की जा रही है उन सबको बेनकाब करके अवाम के सामने लाना, ताकि दूसरे लोग भी औकाफी जायदादों को इंसानियत मर चुकी है। इस्लाम से खाली नाम है, ये नहीं देने वाले, इनसे खींचना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा कानूनी जरिए से। हम सब मिलेंगे, आगे आएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो एक मलगी 40 एक आदमी के नाम पे मलगियां हैं, वो किनके नामों पे डिजिटलाइज करके इनके किराएनामों को वक्फ बोर्ड में जो ब्लैक बोर्ड है ना, वहां नामा लिखिए। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही।